Morning students. Today we are going to start with the new chapter, bailment and pledge. In this lecture we are going to discuss about the bailment, and in our next lecture we will discuss about pledge. So let us first understand what is bailment. Bailment क्या चीज़ है? Bailment is the delivery of goods by one person to the other for a purpose upon a contract that when the purpose is accomplished the goods shall be returned back or disposed of according to the direction of the person delivering them. So as per section 148 of the Indian Contract Act, bailment क्या है? बेसिकली बेलमेंट में हम क्या करते हैं कि गुड्स डिलीवर करते हैं, मतलब एक पर्सन गुड्स डिलीवर करता है दूसरे को किसी पर्पस के लिए, और जब वो पर्पस पूरा हो जाता है वो गुड्स वापस में रिटर्न बैक कर देता है. फॉर एग्जांपल इसके अंदर दो पार्टीज होती हैं, बेलर एंड बेली. बेलर कौन होता है? जो गुड्स डिलीवर करता है गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट. बेली जिसने अपने पर्पस के लिए गुड्स लिए हैं, एंड फॉर द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड इट विल रिटर्न बैक द गुड्स टू द बेलर. मतलब ये मालिक है गुड्स का और इसने गुड्स यूज करने हैं. तो बेलर एंड बेली, दीज आर द टू पर्सन्स. द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज or the owner of the goods is the first person, that is the bailor, and the person to whom goods are delivered, that is the second person, is the bailee. The definition under section 148 has evolved few important traits of the bailment. कुछ important traits हैं, qualities है bailments की. सबसे पहले क्या है? when the person deliver goods to other. मतलब bailment कब arise होगी? जब कोई person goods deliver करेगा और वो goods का deliverance का purpose specific होगा. Upon forming a contract, contract formulate किया जाएगा. Contract that states that when the purpose is accomplished and the goods shall be returned back. तो contract किस चीज़ का? कि जैसे ही purpose पूरा होएगा goods का, वो goods return back कर दिए जाएंगे. The entire process is technically called as bailment. इस सारे process को क्या बोलते हैं? bailment बोलते हैं. ठीक है जी. तो bailment, the person who is delivering the goods is called the bailor and the person to whom goods are delivered is called the bailee. टू पर्सन इन्वॉल्व है. जो पर्सन गुड्स डिलीवर कर रहा है वो कौन है? बेलर. एंड द पर्सन हु इज डिलीवर्ड द गुड्स टू whom the goods are delivered is known as the bailee. फर्दर सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं बेलमेंट की. मोस्ट इजीएस्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल डिलीवरिंग अ साइकिल फॉर रिपेयर. साइकिल रिपेयर के लिए दी है, आपका साइकिल है, आप कौन हो गए? बेलर. जो रिपेयर कर रहा है वो बेली है, और वापस रिपेयर करने के बाद वापस आपको गुड्स डिलीवर कर देगा. लीविंग अ कार at a parking stand, depositing luggage in a clock room, delivering garments to the dry cleaner, lending an ornaments to a friend to attend a party. किसी को अपने गहने उधार पर देने, पार्टी अटेंड करने के लिए. delivering a book to students to study and return after the exams. किसी स्टूडेंट को बुक दी जाए और वापस में वो रिटर्न अपना एग्जाम खत्म होने के बाद, पर्पस पूरा होने के बाद बुक्स वापस दे देगा. Keeping cash or ornaments in a bank locker, giving a mobile phone to friend to someone's call and return back as his balance was unusually low. तो ये सभी जो एग्जांपल्स हैं ये बेलमेंट की है. इसके अंदर बेलर और बेली दो पर्सन इन्वॉल्व हैं. पर्पस के लिए गुड्स दिए जाते हैं और पर्पस पूरा होते ही वापस दे दिए जाते हैं. फर्दर बात आती है काइंड्स ऑफ बेलमेंट. दो तरह की बेलमेंट है जी, ग्रेटिट्यूअस एंड नॉन ग्रेटिट्यूअस. Gratuitous is a bailment which is without any reward or consideration. Gratuitous bailment वो bailment है जिसके अंदर कोई भी पैसा या रिवार्ड नहीं लिया जाता. It is done for free. For example, Rani gave her bike to Rahul as Rahul had to go to sector 10 of Chandigarh. राहुल ने सेक्टर 10 चंडीगढ़ देना था, रानी ने अपनी बाइक दे दी अपने फ्रेंड को to meet his friend. Here Rani is the bailor and Rahul is the bailee. एंड इट इज़ अ ग्रेटुइटस बेलमेंट. उसने बाइक के कोई पैसे नहीं लिए, विदाउट एनी कंसिडरेशन फॉर द रानी. तो ये कौन सी होगी? ग्रेटुइटस. जब हम ग्रेटुइटस वे में किसी को कोई चीज़ दे देते हैं. स्पेशल राइट ऑफ बेलर इन केस ऑफ ग्रेटुइटस बेलमेंट. कौन सा स्पेशल राइट है अंडर सेक्शन 159? ये कहा गया है कि बेलर कभी भी किसी भी टाइम अपने गुड्स डिमांड वापस कर सकता है, चाहे पर्पस उसका पूरा हुआ या नहीं हुआ. बेली का ये मैटर नहीं करता. नो मैटर whether the purpose for the goods are taken is accomplished or not, also whenever the time for which goods were delivered has expired or not. Non-gratuitous bailment is a bailment for reward or consideration. Non-gratuitous bailment क्या है? जो
रिवार्ड या कंसिडरेशन के लिए दी जाती है उसे बोलते हैं नॉन ग्रेटिफिकेशन। फॉर एग्जांपल गिविंग अ साइकिल फॉर रिपेयर, बेलर ने कंसिडरेशन, बेलर्स कंसिडरेशन इज रिपेयर डन टू हिज साइकिल एंड द बेलीज कंसिडरेशन इज द रिपेयर चार्जेस। बेलर के लिए कंसिडरेशन क्या है, जो रिपेयर करवा रहा है उसके लिए पैसे देगा, बेली के लिए जो रिपेयर चार्जेस है वो उसकी कंसिडरेशन है। फर्दर बेलमेंट फॉर बेनिफिट्स, सबसे पहले आई थी बेलमेंट फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स ऑफ द बेलर, where only the benefit accrues to the baler. Such a bailment is exclusively for the benefit of baler. For example, keeping some valuable goods in the neighbor house. आपने अपने कुछ valuables ornaments अपने neighbor के house पर रख दिए उसकी safe custody के लिए, because उसके पास में भी locker अच्छा हो सकता है, without any charges, उसने कोई पैसे नहीं लिए। Here the benefit is only accruing to baler. baler कोई benefit है whose values are kept safely, ठीक है जी। तो इस तरह की बेलमेंट को क्या बोलते हैं, बेलर फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर। दूसरा आता है एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। बेली को कब बेनिफिट होगा, जब सिर्फ बेली को कोई बेनिफिट हो रहा है। बेली इज सपोज आपने अपना नेकलेस अपने फ्रेंड को दे दिया पार्टी में वियर करने के लिए विदाउट एनी चार्जेस। हियर द बेनिफिट एक्रूज टू द बेली बिकॉज उसने पार्टी में वियर करके जाना वो नेकलेस, तो यहाँ पर बेनिफिट किसको मिल रहा है, बेली को। तो ये हो जाती है बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। तीसरा आ जाता है बेलमेंट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ, जब दोनों बेलर और बेली को कुछ गेन हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट से उसे बोलते हैं म्यूचुअल बेनिफिट्स। लाइक डिपॉजिटिंग वैल्यूएबल्स इन अ बैंक लॉकर, बैंक को क्या मिलेगी, कंसिडरेशन मिलेगी, और बेलर को क्या मिलेगा, सेफ्टी मिलेगी उसके वैल्यूएबल्स की। तो इस तरह की बेलमेंट को क्या बोलते हैं, बेलमेंट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स ऑफ बोथ। उसके बाद आती है बेलमेंट फॉर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे कि हमें पता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स पार्टीज द्वारा फॉर्मुलेट नहीं किए जाते बट लॉ द्वारा एनफोर्स कर दिए जाते हैं उसे बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इन्वॉल्वमेंट इनवॉलंटरी और एम्प्लॉयड बेलमेंट कैसी होती है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में, सबसे पहले आती है इनवॉलंटरी और एम्प्लॉयड बेलमेंट, जिसमें क्या करते हैं कि वेयर पार्टीज डजंट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद देयर म्यूचुअल कंसेंट बट बाय द लॉ एनफोर्सेस द कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉर एग्जांपल लॉ एनफोर्स कब करेगा, फॉर एग्जांपल आपके गुड्स गुम गया है ना, किसी को मिले, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स इज अंडर द ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द गुड्स लाइक अ बेली। तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स की ड्यूटी बनती है लाइक अ बेली, वो गुड्स आपके संभाल के रखे एंड अपने ट्रू ओनर फाइंड करके रिटर्न करे गुड्स जो कि बेलर के हैं। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं इम्प्लाइड बेलमेंट। जब उसको गुड्स मिले तो उसकी इम्प्लाइडली ड्यूटी बन गई, उसके साथ ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि वो अपने पूरे मेजर्स ले आपके गुड्स वापस करने के लिए। दूसरा आता है जी वॉलंटरी बेलमेंट और एक्सप्रेस बेलमेंट। When two persons voluntarily enters into a contract or bailment by express intention, it is called as voluntary or express bailment. For example, Joy deposited her mobile phone with the Nokia Care Center for getting it repaired. अब voluntary है मतलब जॉय गया, जॉय ने अपना फोन नोकिया केयर के बाद सबमिट करवा दिया रिपेयर की तरह। द सेंटर एग्रीड टू रिटर्न द फोन आफ्टर रिपेयर ऑन पेमेंट ऑफ चार्जेस फॉर विच दे शुड अ रिसिप्ट। तो नोकिया केयर वालों ने क्या किया कि फ़ोन की रिसिप्ट बना दी कि जैसे ही रिपेयर हो जाएगा उसकी पेमेंट देके वो अपना फ़ोन वापस ले जाएंगे। तो ये एक्सप्रेस बेलमेंट है, जब खुद दोनों पार्टीज ने एक्सप्रेसली इंटेंशनली कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, क्रिएट किया बेलमेंट का, तो इसे बोलते हैं वॉलंटरी बेलमेंट और एक्सप्रेस बेलमेंट। उसके बाद आते हैं डिलीवरी एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट। एसेंशियल्स एलिमेंट क्या है बेलमेंट के, सबसे पहले आती है डिलीवरी और पोजेशन ऑफ गुड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट यही है कि गुड्स ट्रांसफर होने बहुत ज़रूरी है फ्रॉम द ओनर टू द अदर पर्सन। गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड बाय द ओनर ऑफ द गुड्स टू द अदर पर्सन। डिलीवरी में भी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल में भी, एक्चुअल का मतलब ये है कि वो फिजिकल या हैंडिंग ओवर द गुड्स टू द बेली, या कंस्ट्रक्टिव ये इस तरह से है is made by doing anything which is automatically puts the possession of goods with the bailey. For example, having custody of goods without having possession doesn't amounts to bailment. Without having possession doesn't amounts to bailment. सिर्फ custody of goods होना वो mere bailment नहीं हो जाए। दूसरा आता है for a purpose. And the goods must be bailed for some purpose and the bailey should use the goods only for authorized purpose. जिस पर्पस के लिए गुड्स दिए गए हों उसी पर्पस के लिए यूज कर दीजिए। फॉर एग्जांपल कार दी है फ्रेंड को ड्रॉप करने के लिए, आप क्या करो जी, कार को जाके रास्ते में स्मगलिंग करने लग जाओ,
तो ये तो अनऑथराइज्ड पर्पस हो गया, तो ये बेलमेंट नहीं मानी जाएगी। ठीक है। अगर कार का यूज़ करना था, कार किसी थर्ड पर्सन को लोन पे दे आए और उसके ऊपर लोन उठा लिया, तो ये भी गलत काम है। तो इम्पोर्टेंट इशू है कि पर्पस जो ऑथराइज किया गया उसी पर्पस के लिए की जानी चाहिए बेलमेंट। द पर्पस इन्वॉल्व ऑन अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस गुड्स मस्ट बी रिटर्न बैक, ये कंडीशन भी है। एंड गुड्स शुड बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस फॉर विच दे वर एक्वायर्ड, दैट इज ओनली फॉर ऑथराइज्ड पर्पस। देन कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। सभी इंसेंशियल्स जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स हैं अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वो पूरे होने चाहिए। एंड द रिलेशनशिप ऑफ बेलर एंड बेली मे अराइज बिकॉज ऑफ एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के कारण, फॉर एग्जांपल डिलीवरिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राई क्लीनिंग अपॉन रिसीविंग अ रिसिप्ट फॉर गुड्स, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद बिकॉज ऑफ एन एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट कैसे है? In case of finder of lost goods, the finder is impliedly under the contract to become the bailey of the goods, because finder of lost goods क्या बन जाता है? ऑटोमेटिकली बेली बन जाता है, उसकी ड्यूटी बन जाती है गुड्स संभाल के रखने हैं और उसके ओरिजिनल ओनर तक पहुंचाने की ड्यूटी उसकी बन जाती है ऑफ द बेली, एंड फाइंड द ट्रू ओनर टू रिटर्न बैक द गुड्स टू हिम। उसके बाद आते हैं रिटर्न ऑफ गुड्स। When the purpose of bailment is accomplished, जब बेलमेंट का पर्पस पूरा हो जाएगा, it is the duty to return back the goods और dispose of according to the direction of the bailor। जैसे बेलर कहता है, जिस तरीके से बेलर कहता है वैसे गुड्स को वापस करना पड़ेगा। And for example, n cases of a car gives for repair, after the repair of the car is to be returned back, the bailey must return the goods without demanding when either the purpose is accomplished or the time when goods were बेल्ड हैज एक्सपायर्ड। तो या तो जिस टाइम के लिए उसने गुड्स दिए थे 2 घंटे के लिए थे तो 2 घंटे में वापस करनी पड़ेगी, या अगर उसका पर्पस पूरा हो गया, उसने कार रिपेयर होगी, वापस देना उसका ड्यूटी बन जाती है। तो रिटर्न ऑफ गुड्स भी इसेंशियल एलिमेंट्स है बेलमेंट्स के। उसके बाद आ जाते हैं गुड्स। गुड्स बड़े इसेंशियल एलिमेंट है अंडर द बेलमेंट डिफाइंड अंडर सेक्शन 27। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, गुड्स इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट डजंट इंक्लूड मनी, एक्शनेबल क्लेम्स सच एज बिल ऑफ एक्सचेंज और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर गुड्स क्या है? जो हर एक काइंड जो कि मूवेबल गुड्स है उसको गुड्स माना जाएगा, बट इट डजंट इंक्लूड्स मनी, एक्शनेबल क्लेम्स और बिल ऑफ एक्सचेंज और इमूवेबल प्रॉपर्टी। कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन इन समथिंग इन रिटर्न मॉनेटरी गेन्स हो रहे हैं आइदर बाय द बेलर और द बेलर टू बेली और बाय बेली टू द बेलर। हाउएवर बेलमेंट कैन बी विदाउट कंसिडरेशन, जिसे हम ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट भी बोलते हैं। बिना किसी कंसिडरेशन के जो बेलमेंट बिना किसी रिवार्ड के की जाती है उसे बोलते हैं ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। इसके अंदर एक और बेनिफिट भी है। अंडर सेक्शन 159 हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी टाइम, चाहे पर्पस पूरा हुआ है या नहीं हुआ, बेलर अपने गुड्स वापस डिमांड कर सकता है, चाहे पर्पस ऑफ अकम्प्लिशमेंट पूरा हुआ है या नहीं हुआ, अगर वो ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है। फर्दर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली, कौन कौन सी ड्यूटीज हैं जी? ड्यूटीज टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी अंडर सेक्शन 151 एंड 152 कि बेलर की ड्यूटी बनती है, बेली की ड्यूटी बनती है कि वो बेलर के गुड्स का प्रॉपर केयर रखे ताकि गुड्स खराब ना हो। अगर गुड्स बाय चांस खराब हो जाए तो बेली विल बी लायबल इन केस ही डजंट टेक केयर ऑफ द गुड्स। इफ द बेली टुक रीजनेबल केयर, तब तो बेली का केस में कोई लॉस नहीं है, कोई भी लायबल नहीं होगा। अगर वो रीजनेबल केयर नहीं रखता तो लॉस अराइज होगा, इंटेंशनली हो या चाहे अनइंटेंशनली बेली लायबल होगा अगर वो रीजनेबल केयर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल बेलर बेल्ड सम बैग्स ऑफ सीमेंट विद द बेली, उसने बेली के पास सीमेंट के कुछ बैग्स रखवा दिए। रात में क्या हुआ? बारिश होगी, तो बेली ब्रॉट द बैग्स टू द सीमेंट इनसाइड द गोडाउन, उसने बैग्स को गोडाउन में करवाया, बट स्टिल द बैग्स वर डिस्ट्रॉयड बिकॉज द सीलिंग वाज लीकिंग, हेल्ड बेली वाज नॉट रीजनेबल फॉर द लॉसेस। तो इस केस में बेली रीजनेबल लॉसेस के लिए उसने ट्राई तो किया, उसने रीजनेबल केयर भी की, बट स्टिल लॉस अराइज हो गया, तो बेली इज नॉट लायबल फॉर द लॉस। फर्दर ड्यूटी टू मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, ड्यूटी नॉट टू मेक एन अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स। अगर तो बेली गुड्स का ऑथराइज्ड यूज करता है फिर भी लॉस अराइज होता, मेक ऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स एंड लॉस अराइजेस, बेली इज नॉट लायबल। बेली मेड एन अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, लॉस अराइजेस, चाहे वो नेग्लिजेंस के कारण है चाहे वो अनइंटेंशनली है, तो बेली इज लायबल है। ठीक है जी। अगर वो अनऑथराइज्ड यूज करता है, अगर ऑथराइज्ड करता है फिर भी लॉस हो जाता है तो बेली लायबल नहीं है। और
अनऑथराइज यूज करता है, चाहे वो नेग्लिजेंस के कारण है, इंटेंशनली है या अनइंटेंशनली है, तो बेली इज लायबल। ड्यूटी नॉट टू मिक्स गुड्स, ये भी है कि बेली अपने गुड्स में बेलर के गुड्स ऐड ना करे किसी पर्पस के लिए। बेली मस्ट नॉट मिक्स हिज ओन गुड्स विद द बेलर गुड्स विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर, बेलर की कंसेंट के बिना अपने गुड्स बीच में ऐड ना करे। बेली मस्ट मेंटेन ए सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ बेलर्स गुड्स। इफेक्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गुड्स, अगर वो मिक्स कर लेता है तो गुड्स मिक्सड विद कंसेंट ऑफ बेलर, तो उसका प्रोपोर्शनेट शेयर होगा उस गुड्स में जो मिक्स किए गए। अगर मिक्स विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर, तो उस केस में गुड्स मस्ट बी सेपरेटेड। अगर वो सेपरेट अगर तो गुड्स सेपरेट हो रहे हैं और उसके लिए उसको रीजनेबल या उसके जो जेन्युइन डैमेजेस अगर कुछ हुए हैं तो उस डैमेजेस के ऊपर चार्जेस उसको पे करने पड़ेंगे। अगर गुड्स सेपरेट नहीं किए जा सकते तो बेल इज लायबल टू कंपनसेट बेलर फॉर द लॉस ऑफ गुड्स विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, जो सेपरेट नहीं किए जा सकते तो उसके लिए लॉस भी पूरा करेगा। ड्यूटी नॉट टू सेट अप एन एडवर्स टाइटल, एडवर्स टाइटल क्या है? बेली ने गुड्स लिए ऑन बिहाफ ऑफ द बेलर, बेली इज ओनली गिवन द पोजेशन ऑफ गुड्स, सिर्फ उसके पास क्या था? पोजेशन ऑफ गुड्स था। ही बेली कैन नॉट ट्रांसफर द टाइटल और ओनरशिप टू अ थर्ड पर्सन, इस केस में वो क्या है? एडवर्स, थर्ड पर्सन को टाइटल नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल ए ने क्या किया? बी से कार ली, उधार लैंड हिज कार, इसलिए बी ने अपने रिलेटिव्स लेने जाने थे एयरपोर्ट से, बट रास्ते में क्या किया? बी ने उसकी गाड़ी किसी मनी लेंडर को लोन लेके गिरवी रख दी। हेल्ड बी इज लायबल टू ए फॉर सेटिंग अप एन एडवर्स टाइटल, तो उसने क्या किया? एडवर्स टाइटल दिया ए की कार को। एंड बी इज आल्सो लायबल फॉर द लॉसेज ऑफ द मनी लेंडर फॉर प्लेजिंग समवन एल्स गुड्स टू हिम, तो अगर मनी लेंडर को कोई भी लॉसेज हुए तो उसके गुड्स के लिए भी लायबल होगा। फर्दर ड्यूटी टू रिटर्न बैक द गुड्स अंडर सेक्शन 160-161, बेली को जैसे ही पर्पस अकम्प्लिश हो गया तो गुड्स रिटर्न करने पड़ेंगे बेलर को या डिस्पोज ऑफ करने पड़ेंगे उसकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली। इफ द बेलमेंट वाज टू अकम्प्लिश अ पर्पस, तो गुड्स रिटर्न करेंगे आफ्टर द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड। अगर तो बेलमेंट वाज फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो जब वो टाइम एक्सपायर कर जाएगा तो वापस गुड्स रिटर्न कर देंगे। ग्रेटिट्यूस बेलमेंट भी होती है जिसके अंदर कोई भी डिमांड नहीं की जाती, वो नो कंसिडरेशन, बट उसके अंदर कभी भी किसी भी टाइम विदाउट द एक्सपायरी ऑफ द पर्पस गुड्स कैन बी डीम टू बी बैक्ड, मतलब कभी भी वापस डिमांड किए जा सकते हैं। ड्यूटी टू रिटर्न एंड एक्विजिशन और इंक्रीज टू द गुड्स, कहते फॉर एग्जांपल गुड्स में कोई बढ़ोतरी हो गई है, जो गुड्स दिए थे उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं गुड्स। फॉर एग्जांपल किसी ने काऊ दी किसी को कस्टडी में, और काऊ का थोड़ी देर बाद टेक केयर मतलब संभाल के रखने के लिए थोड़ी देर बाद उस काऊ ने बच्चा दिया, काफ, ठीक है, तो इसकी ड्यूटी बनती है कि काऊ के साथ उसका काफ भी वापस मोड़ेगा। द बेली इज बाउंड टू रिटर्न एन एक्रीशन और एडिशन इन गुड्स व्हिच हैव अक्रूड फ्रॉम द गुड्स बेल्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए लीव्स अ काऊ इन द कस्टडी फॉर बी टू बी टेकन केयर ऑफ, द काऊ गिव्स बर्थ टू अ काफ, बछड़े को जन्म दिया, तो बी इज बाउंड टू रिटर्न बैक द काऊ एंड द काफ बोथ टू ए को वापस करने के लिए लायबल होगा। उसके बाद आते हैं राइट्स ऑफ द बेलर, एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स। एक तो हमने अभी देखा रीजनेबल केयर रखना जरूरी है, नॉट टू मेक एन अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, नॉट टू मिक्स हिज गुड्स विद द बेलर गुड्स, नॉट टू सेट अप एन एडवर्स टाइटल, ड्यूटी टू रिटर्न गुड्स, ड्यूटी टू रिटर्न एंड एक्रीशन ऑफ गुड्स, ये सभी हमने पढ़ लिए। तो ये बेसिकली एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स में आ जाता है बेलर के। दूसरा अवॉइडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 153, तो कहते हैं contract of bailment is a voidable contract at the option of the bailor, that is the bailor can terminate the contract if the bailee does anything inconsistent with the terms of contract or bailment। कहते अगर बेली कुछ गलत करता है जो भी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थी तो वो voidable contract कभी भी बन सकता है बेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जाम्पल बेलर lent his horse for riding to the bailey, the bailey used the horse for carriage, उसने अपने कोई और पर्पज के लिए उसे यूज कर लिया, उसे कैरियज के लिए गुड्स को इधर उधर रखने के लिए यूज कर लिया, तो बेलर कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, वो अपना कभी भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके अपना हॉर्स वापस ले सकता है। उसके बाद आती है ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। ग्रेटिट्यूस बेलमेंट क्या है? ग्रेटिट्यूस होता है बिना किसी डिमांड के, बिना किसी बेनिफिट के, बिना किसी कंसिडरेशन के बेलर कोई गुड्स देता है, बट उसके अंदर जैसे कि हम पढ़ते ही हैं, कितनी बार पढ़ चुके हैं कि गुड्स का चाहे पर्पस पूरा हुआ या नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट एक्सपायर्ड, तो बेलर कैन डिमांड बैक द गुड्स एट एनी टाइम, उसे बोलते हैं ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। राइट अगेंस्ट अ थर्ड पर्सन, इफ अ थर्ड पर्सन डिप्राइव्स द बेली ऑफ द यूज ऑफ पोजेशन ऑफ द गुड्स
does any injury to the goods, then the bailor has the right to sue such a third person. अगर कोई थर्ड पर्सन उसके गुड्स को कोई नुकसान पहुंचाता है तो बेलर के पास राइट अगेंस्ट थर्ड पार्टी भी होता है कि वो अपने गुड्स का जो नुकसान किया है वो क्लेम कर सकता है. उसके बाद टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट, कहते हैं बेलर मस्ट डिस्क्लोज ऑल द डिफेक्ट्स नोन टू हिम. बेलर को जो भी उसके बारे में डिफेक्ट्स के बारे में पता है गुड्स के, तो वो उसको सभी डिफेक्ट्स बताएगा बेली को. अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता अबाउट द डिफेक्ट्स, देन बेली सफर्स एनी लॉस, देन द बेलर इज लायबल फॉर सच लॉसेस. उस केस में फिर बेलर लायबल होगा अगर वो डिफेक्ट्स के बारे में नहीं बताता. फॉर एग्जाम्पल डिफेक्ट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पेटेंट डिफेक्ट्स, लेटेंट डिफेक्ट्स. पेटेंट डिफेक्ट्स कौन से होते हैं? जो नॉर्मल इंस्पेक्शन में पता चल जाते हैं, उस डिफेक्ट्स को हम पेटेंट डिफेक्ट्स बोलते हैं. लेटेंट डिफेक्ट होते हैं विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड अंडर ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन, विच आर डोरमेंट और कंसील्ड बाय नेचर, मतलब जो छुपाए गए हैं बाय किसी रीजन से, उसे बोलते हैं लेटेंट डिफेक्ट, मतलब ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन में जिसके बारे में नहीं पता चलता. तीसरे आते हैं इन ग्रेट्यूटस बेलमेंट, बेलर इज ओनली लायबल फॉर द नॉन डिफेक्ट दैट इज द पेटेंट डिफेक्ट. उस केस में अगर ग्रेट्यूटस बेलमेंट है तो बेलर सिर्फ पेटेंट डिफेक्ट, नॉन डिफेक्ट के लिए ही लायबल होगा. फॉर एग्जाम्पल ए बेल्ड हिज कार टू बी विदाउट रिवार्ड टू ड्रॉप हिज मदर टू हॉस्पिटल. उसने ग्रेट्यूटस बेलमेंट दी. ऑन द वे द कार ब्रोकन ऑफ एंड बी मेट विद एन एक्सीडेंट, कार टूट गई एंड बी का एक्सीडेंट हो गया, इन विच हिज मदर सफर्ड इंजरीज. बी sued A for damages, held A was not liable as he was unaware of the latent defect in the car and the bailment was gratuitous bailment. उसको latent defect के बारे में नहीं पता था और उसका वो कोई भी क्लेम नहीं कर सकता. एक तो उसने बेनिफिट है ना, बिना किसी कारण के उसको गाड़ी दी, उसका गाड़ी का नुकसान भी कर दिया और पैसे भी मांग रहा है. कितना गलत तरीका है. तो इस केस में कुछ भी नहीं क्लेम कर सकता पर्सन ए से, बिकॉज उसने ग्रेट्यूटस वे में गुड्स दिए थे. उसके बाद आए थे इन अ नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट, बेलर इज लायबल फॉर बोथ नॉन पेटेंट्स एंड अननोन डिफेक्ट्स. अगर कोई नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट है तो बेलर किसके लिए? पेटेंट्स डिफेक्ट के लिए भी लायबल है और लेटेंट डिफेक्ट्स के लिए भी लायबल है. टू बियर ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, कहते हैं बेलर की ड्यूटी बनती है कि हर तरह से बेली के वो एक्सपेंसेस इनकर करे. एक्स्ट्रा एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी expenses incurred by the bailey is also to be reimbursed by the bailor. अगर बेली ने कुछ एक्स्ट्रा खर्चा किया तो बेली उसके लिए लायबल, रीइंबर्स करने के लिए लायबल होगा. फॉर एग्जांपल ए lent his horse to Y, X lent his horse to Y, the horse met with an accident, Y incurs medical expenses on it, Y can claim back these expenses from X. उसने वाई को उधार पे दिया, हॉर्स का एक्सीडेंट हो गया, वाई ने उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के ऊपर खर्चा किया, तो वाई कैन क्लेम बैक फ्रॉम एक्स की हाँ जी मैंने आपके घोड़े पे खर्चा किया. तो टू आइडेंटिफाई फॉर डिफेक्टिव टाइटल, इफ द टाइटल ऑफ गुड्स वर डिफेक्टिव देन द बेली सफर्स एनी कॉन्सिक्वेंसेज, देन द बेलर मस्ट आइडेंटिफाई द बेली फॉर सच लॉस सफर्ड. फॉर एग्जाम्पल रणबीर ऑक्शन द कैटल ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु. रणबीर ने गुरु के कहने पे कैटल की ऑक्शन रख ली. Later it was revealed that the guru was not the true owner for cattle. True owner was X. True owner X sued Ranbir and took damages from him. Held Ranbir can claim these damages from Guru. ठीक है जी. तो रणबीर ने कहने पे किस पे किया था काम? गुरु के. तो रणबीर is liable for the damages from the Guru. To identify the bailey for the loss in case of premature termination of gratuitous bailment. अगर ग्रेट्यूटस बेलमेंट के कारण कोई प्री मेच्योर टर्मिनेशन होगी कॉन्ट्रैक्ट की तो उस केस में वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं. इफ द बेलर टर्मिनेट्स अ ग्रेट्यूटस बेलमेंट बिफोर द पर्पस वाज अकम्प्लिश्ड, बिफोर द टाइम वाज एक्सपायर्ड, then in such case if the bailey suffered any loss which exceeds the benefit he received from such contracts, then the bailor has to indemnify the bailey. उस केस में बेली को वो लॉस इंडेमनीफाई करने के लिए कह सकता है. फॉर एग्जाम्पल ए बेलर lends an old bicycle to the bailey gratuitously without reward for 3 months. और एक पुराना साइकिल दे दिया बेलर ने बेली को. The bailey incurred 200 on the repair of that bicycle. Bailor demands back his bicycle after 1 month. Held bailor must compensate bailey for the losses suffered for repair. तो वो जो भी उसने रिपेयर पे खर्चा किया तो उसके लिए भी लायबल होगा बेलर. ठीक है जी, बेली को लॉस के लिए देने पड़ेंगे. ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स, ये भी ड्यूटी बनती है कि गुड्स वापस दे.
उसकी उसी तरह राइट्स ऑफ बेली, सेम राइट्स बेली के पास है, अगर टू डिस्क्लोज ऑल द डिफेक्ट्स, टू बियर ऑल एक्सपेंसेस, टू indemnify फॉर डिफेक्टिव टाइटल्स, टू indemnify फॉर gratuitous bailment, टू receive back the goods, right to apply to court to stop delivery, the person other than the bailor claims the goods, है ना, बेलर नहीं डिमांड करा, कोई और उसकी जगह गुड्स क्लेम करना चाहता है, एंड बेली में अप्लाई टू द कोर्ट टू स्टॉप द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बेलर एंड टू डिसाइड द टाइटल ऑफ गुड्स बेल्ड, मतलब टाइटल पता लगाने के लिए वो कोर्ट में भी जा सकता है कि गुड्स की डिलीवरी रोक सकता है, कि बेलर का पता लगाने के लिए भी एक्चुअल टाइटल किसके नाम पे है। राइट टू स्यू अ थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी है कोई, डिराइव्स द बेली फ्रॉम द यूजेज और पोजेशन ऑफ द गुड्स, देन द बेली हैज द राइट टू स्यू द थर्ड पार्टी, दिस राइट इज गिवन टू बोथ बेलर एंड बेली अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, दोनों बेलर एंड बेली को थर्ड पार्टी के अगेंस्ट राइट है। डिलीवरी ऑफ गुड्स टू वन और द सेवरल जॉइंट बेलीज ऑफ द गुड्स, if the several joint owners has bailed the goods to the bailey may return back the goods to any of the several joint owners without the consent of all, तो वो किसी को भी वापस कर सकता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, अगर कोई एग्रीमेंट में लिखा ही है कि डेट पर्सन को वापस ही करनी है तो फिर उसी को ही करनी है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उसके सेवरल ओनर्स है तो वो किसी को भी वापस कर सकता है जी गुड्स। इंडेमनीफाई फॉर लॉस टू डिफेक्टिव टाइटल्स, अगर डिफेक्टिव टाइटल है, फॉर एग्जाम्पल बेली ने गुड्स, बेलर हैज नो टाइटल ऑफ गुड्स एंड द बेली इज इन गुड फेयर रिटर्न देम बैक टू हिम, द ट्रू ओनर यूज बेली फॉर द गुड्स, देन द बेली इज नॉट लायबल फॉर द ट्रू ओनर, तो उस केस में डिफेक्टिव टाइटल, अब उसे पता ही नहीं था कि उसका ट्रू ओनर कौन है, उसने जिससे लिए थे उसको वापस कर दिए, तो उसके लिए भी बेली लायबल नहीं होगा। राइट टू रिकवर नेसेसरी एक्सपेंसेस, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट some remuneration is paid to the bailey for services he rendered in respect of them, he has the right to recover the same, अगर कुछ उसने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, बेली ने कोई खर्चा किया है तो उसके लिए वो लायबल है एक्सपेंसेस क्लेम करने के लिए। उसके बाद आता है राइट टू लियन, राइट टू लियन होता है व्हेन द लॉफुल चार्जेस ऑफ द बेली आर नॉट पेड टू हिम बाय द बेलर, द बेली हैज द राइट टू रिटेन सच गुड्स अंटिल हिज चार्जेस आर पेड टू हिम, दिस राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स बाय बेली इज कॉल्ड एज राइट टू लियन, मतलब जब तक उसके लॉफुल चार्जेस वापस नहीं दिए जाते तो उसका राइट है कि वो तब तक गुड्स पोजेस करके अपने पास रख सकता है। तो लियन कह सकते हैं, लियन इज द राइट ऑफ द क्रेडिटर टू रिटेन पोजेशन ऑफ गुड्स ऑफ द डेटर्स टिल द डेट इज सेटिस्फाइड। दो तरह की लियन होती है, पर्टिकुलर लियन और जनरल लियन। पर्टिकुलर लियन को डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 70, उसमें बेली टू रिटेन दोज वेरी गुड्स फॉर द सर्विस रिगार्डिंग विच द रेमुनरेशन इज ड्यू, और जनरल लियन होती है अंडर सेक्शन 171, बेली टू रिटेन द गुड्स ऑफ द बेलर फॉर अ जनरल बैलेंस ऑफ द अकाउंट्स, जब तक उनकी सेटलमेंट नहीं हो जाती। पर्टिकुलर लियन और जनरल लियन का बेसिक डिफरेंस हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और लास्ट में आया था टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट कब खत्म होती है, जब पीरियड ऑफ एक्सपायर हो जाए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो भी बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में था, या ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश हो जाए, या कोई अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स कर रहा है तो उस केस में बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, या सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया जिसके ऊपर बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट था, लाइक हॉर्स की बेलमेंट की हुई थी तो हॉर्स अगर मर जाता है तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉयज, बेलमेंट खत्म हो जाएगी। ग्रेट्यूटस बेलमेंट है तो जब भी एट एनी टाइम लेट डाउन इन द सेक्शन 159 कभी भी वापस मांग सकता है गुड्स। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द बेलर और बेली under section 162 gratuitous bailment is terminated by the death either of the bailor or to the bailey, उस केस में भी bailment terminate हो सकती है। And in our next lecture we will discuss pledge. I hope you like the video. If you have any query you can put it into the comment below. Thank you so much.